They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning, but I am really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I have thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार इस इस्तीफे के बाद किया है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ऑपोजिशन लगातार, और ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, इस्तीफे के बाद सीजेपी की नई मांग सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नई मांग सीजेपी ने अपने आगे सामने रख दी है कि आरएफ और दिल्ली पुलिस भी अब माफी मांगे। जिन स्टूडेंट्स के खिलाफ उन्होंने अत्याचार किया, जिन स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने लाठी चलाई, तो सीजेपी उसको लेकर नई मांग कर रहा है कि आरएफ और दिल्ली पुलिस अब इसकी माफी मांगे स्टूडेंट से। नई मांग ये सीजेपी ने कर दी है। पहले 3 मांग उन्होंने की थी, जिसके बाद अब उन्होंने नई मांग की है कि आरएफ और दिल्ली पुलिस माफी मांगे। विक्ट्री तो सीजेपी डेलीगेशन बैठक के लिए निकल चुका है। थोड़ी देर में सरकार के साथ सीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात होगी। जो 2 डिमांड्स अभी बाकी है उनको सरकार क्या पूरा करेगी, ये देखना लाजमी होगा। मेन और सबसे अहम डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी फाउंडर, उनके जरिए ये वाजे किया गया है कि जब तक उनकी 2 मांगे और जो है वो पूरी नहीं की जाती है, तब तक कॉकरोचेस घर नहीं जाएंगे। यानी कि जनता मंतर पर अभी ये गहमागहमी खत्म नहीं होने वाली है और थोड़ी देर में सीजेपी सरकार की मीटिंग होगी, तब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि क्या ये प्रोटेस्ट अब खत्म होने जा रहा है या अभी सड़कों के ऊपर दिल्ली के जनता मंतर पर कॉकरोचेस की तादाद अभी दिखने वाली है। हालांकि जिस तरीके से सरकार ने अभी जो एक रुख दिखाया है और इस पूरे प्रेशर के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्या वो इन 2 मांगों को भी मानेगी, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है। सरकार क्या प्लान कर रही है ये भी देखना होगा। और इस्तीफे पर खड़गे का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये सच्चाई की जीत हुई है और सच्चाई की जीत के साथ ही उन्होंने कई बातें भी कही है। जिस तरीके से जो यूथ था देश का वो सड़कों पर टिका रहा और उसके बाद सरकार को यहाँ बैकफुट पर आना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इस्तीफे पर खड़गे का बयान सामने आया है।
ये सच्चाई की जीत हुई है, देश की जीत हुई है। यूथ पावर मुल्क की ताकत है, ये भी बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो यूथ पावर मुल्क की ताकत है, खड़गे इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान सामने आया और उन्होंने भी यहाँ जो फैसला सरकार के जरिए लिया गया, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, उस पर अपनी राय दी है और अब पॉलिटिकल रिएक्शन लगातार सामने आने शुरू हो गए हैं। शिक्षा नीति के ऊपर सवाल उठ रहे थे, एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे थे और जब से एनटीए के थ्रू यहाँ तमाम एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे, उसके बाद एकाएक जो पेपर लीक की खबरें सामने आती गई, ट्रांसपेरेंसी की कमी नजर आई, जवाबदेही तय नहीं हो रही थी। जिन लोगों के जरिए पेपर लीक में जिन लोगों की मौजूदगी पाई गई, संलिप्तता पाई गई, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन कोई एक जवाबदेही तय नहीं हो रही थी और यही वजह है कि यहाँ कॉकरोचेस सड़कों पर उतरकर सामने आए। सीजेपी डेलीगेशन बैठक के लिए निकल चुका है, थोड़ी देर में बैठक होगी, सरकार के साथ ही मीटिंग होगी। 2 मांगे सीजेपी की अभी भी पेंडिंग है, जिन्हें सरकार को मानना है, ऐसा सीजेपी का कहना है। और जब तक इन दोनों मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक कॉकरोचेस यानी कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे कि सीजेपी डेलीगेशन अभी बैठक के लिए निकला है, आगे देखते हैं कि 2 मांगे उनकी पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, इसको अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो तीसरी उनकी सबसे बड़ी मांग थी शबनम, वो उनकी पूरी हो चुकी है। जो वो चाहते थे, पूरा ऑपोजिशन चाहता था, सीजेपी पार्टी चाहते थे और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिसका इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। 36 दिन का ये प्रोटेस्ट चला, जिसके बाद उनकी एक मांग थी, हर किसी की एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और वो आज पूरा हो चुका है। कल सीजेपी ने मीटिंग जेपी नड्डा से की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि दोपहर तक का उन्होंने वक्त दिया और कहा कि दोपहर तक वो इस्तीफे के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज दोपहर इस्तीफे उन्होंने दे दिया है, जो सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। ऑपोजिशन का लगातार इस पे बयान सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे डेमोक्रेसी की जीत बताया है, तो वहीं प्रियंका गांधी भी इसमें बहुत खुश है। वो बता रही हैं कि ऑपोजिशन लगातार किस तरह से इसके ऊपर संसद में इसके ऊपर आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा था। पीएम हाउस के ऊपर उन्होंने सबने वो मुजाहिरा देखा, जब पीएम हाउस के बाहर ऑपोजिशन ने मुजाहिरा किया, किस तरह से राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी ऑपोजिशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लगातार ये मांग उठाई जा रही थी। मुबशीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। मुबशीर, जो डेलीगेशन है सीजेपी का वो निकल चुका है सरकार से बातचीत करने के लिए, कहां कुछ आपको संभावनाएं दिख रही हैं? मेन मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन 2 मांगे अभी भी पेंडिंग है। अभिजीत दीप के साफ कहते हुए नजर आए हैं कि जब तक, और बड़ी खबर अभी बता दें आपको, सैयद मुबशीर आपके पास आऊंगी, अमित शाह से नड्डा मुलाकात करेंगे। गहमा गहमी लगातार यहां बनी हुई है और मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। पीएम मोदी अमित शाह की मीटिंग खत्म हुई है, अब जेपी नड्डा वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि जेपी नड्डा लगातार सीजेपी डेलीगेशन के साथ राब्ते में रहे हैं, मीटिंग्स करते रहे हैं। कल भी यहां जेपी नड्डा के साथ सीजेपी डेलीगेशन ने, जो स्पोक पर्सन थे आशुतोष रांका और जो दूसरे लोग थे, उन्होंने मुलाकात की थी यहां अमित शाह के साथ, जितेंद्र सिंह के साथ। बारीकी से अगर नजर बनाए रखी गई है तो वो जेपी नड्डा के थ्रू ही इस पूरे मामले पर रखी गई है और बातचीत का सिलसिला भी उनके ही जरिए शुरू किया गया है। सैयद मुबशीर हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ मौजूद है। आज सैयद मुबशीर, कैबिनेट में भी बहुत ज्यादा, यानी कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनमें भी गहमा गहमी है। जेपी नड्डा से अमित शाह की मुलाकात होने जा रही है और एक तरफ डेलीगेशन रवाना हो चुका है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल शबनम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए सबसे मेन मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हो चुका है। लेकिन उसमें एक टेक्निकल चीज़ भी आ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, ये अभी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। पहली चीज़, बहुत टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी इच्छा से, अपनी तरफ से इस्तीफा भेजा है कि मैं जिस पोस्ट पर हूँ, जिस मंत्रालय का मंत्री हूँ, उस पोस्ट से मैं रिजाइन करता हूँ। 36 दिन से जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा कि 4 दशक से मैं पूरे जीवन में अपने 4 दशक से इन सब व्यवस्थाओं के लिए काम करता चला आया हूँ।
धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से इस्तीफा भेज दिया है, यानी माना जाए कि इस्तीफा हो गया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली हमको समझना होगा, प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर किया या नहीं किया, ये खबर आनी है। इस्तीफा दे चुके हैं और सरकार उसे एक्सेप्ट ना करे, गुंजाइश कितनी बचती है? देखिए, गुंजाइश की अब कोई वजह नहीं बचती और गुंजाइश की अब जगह भी नहीं है। वजह इसके पीछे की यह है कि 3 बार की टेबल टॉक हो चुकी है, वो प्रोटेस्टर्स के बीच में, सीजेपी के और जेपी नड्डा समेत जो है दूसरे मंत्री के साथ। लगातार जेपी नड्डा जो है वो इन बीच की सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच की कड़ी, मजबूत कड़ी बन के निकले हैं। हालांकि उन्होंने जैसे जिस तरीके से सोनम वांगचुक का आपके पास प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उन्हें सुन लेते हैं। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now, I think this is the beginning, but I am really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I have thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो गांधी जी ने रास्ता हमें दिखाया, जो उन्होंने हमें सिखाया, देश उन्हीं कदमों पर चल रहा है और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से डिक्टेटरशिप अपना रही थी, यूथ ने उसे तोड़ दिया है, उसे जवाब दिया है। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही है। सैयद मुबशिर हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधे उन्हीं का रुख करते। सैयद मुबशिर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और बिल्कुल शबनम, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल पॉइंट से समझ लीजिए, हालांकि इसमें गुंजाइश अब ना के बराबर है, क्योंकि जब इस्तीफा सौंप दिया गया है तो इस्तीफा मंजूर होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही सरकार होगी, क्योंकि ये सब मीटिंग्स और सारे चर्चाओं के बाद ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंपा होगा। तो लेकिन टेक्निकली ग्राउंड पर जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ रही थी, वो मैंने अपने नाज़रीन के सामने रखी है। लेकिन सबसे अहम चीज़, अभी मीटिंग होगी गृह मंत्री अमित शाह से जेपी नड्डा की, उसके बाद जेपी नड्डा की होगी प्रोटेस्टर्स से, सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे मीटिंग होगी, सौरभ दास से होंगी और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ होगी। 2 मांगों के लिए, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि 2 मांगें, कल ही ये खबर आई थी कि इन दोनों मांगों पर गौर किया गया है, मान ली गई हैं ऑलमोस्ट, एक औपचारिकता पूरी है। क्योंकि जब सबसे बड़ी मांग थी, सबसे पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जब वो हो गया है तो कहीं ना कहीं उन 2 मांगों पर फिर कोई बहुत ज़्यादा वक्त लगना थोड़ा सा अंदेशा नहीं लग रहा है कि क्योंकि 21 परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिनको जो नीट के
जब पेपर लीक हुआ उन्होंने आत्महत्या की। 21 परिवारों को 1-1 रुपए का मुआवजा यानी 21 करोड़ रुपए सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ जितने भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर एफआईआर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर हो, लगातार उन सभी एफआईआर्स को, उनके केसेस को वापस लिया जाएगा। तो बहुत बड़ी मांगे नहीं है। तीसरी सबसे अहम बात आपको बता दूं, प्रोटेस्ट के अंदर पिछले 36 दिन से उबैद नाम के एक शख्स है जो उत्तर प्रदेश से है, वो लगातार प्रोटेस्टर्स को खाना खिला रहे थे। कल ये खबर निकलकर सामने आई कि उनके पूरे परिवार को यूपी पुलिस ने उठा लिया और ये कहा गया कि उबैद को वापस बुलाया जाए और वो वापस यहाँ पर आए जब तक उनको हमारे हवाले नहीं किया जाएगा, आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसमें उबैद के फादर हैं, उसमें उबैद के भाई हैं, उनके ससुर हैं और भी फैमिली के 1 से 2 लोग हैं, मतलब 4 से 5 लोगों को यूपी पुलिस ने उठाया। ऐसी खबरें निकल कर सामने। आज हमने कोशिश की उबैद से बात करने की, लेकिन उसी वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई तो जोश जिस तरीके से था उस वक्त वो कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ वहाँ फिलहाल कोई, और ना ही कुछ इस सिचुएशन में था। लेकिन हमको थोड़ी सी चीज़ें समझना होगा। 36 दिन के इस आंदोलन के पीछे की सबसे बड़ी ताकत जो युवा थे, जो जेनजी है, जिनको हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर वो अड़ जाए, बहुत सारे मीम्स हमने देखे हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किए जो पुलिस के सामने और नेताओं के सामने बहुत बड़ा चैलेंज थे, जिनको यह समझ पाना, डिकोड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हमने खुद पढ़ा, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते 8 दिन से लगातार जंतर मंतर पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं। 20 तारीख को जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी अपने नाज़रीन को और साफ तौर पर दिखाया था कि कौन पत्थरबाजी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जहाँ तक अपना या मेरा आकलन है, जो हमने ग्राउंड पर जाकर ऑब्जर्व किया है, उसमें जो पत्थरबाजी की गई वो पत्थरबाजी जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर वो ना के बराबर थे, यानी 99% वो नहीं थे। जो पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसमें जो आउटसाइडर्स जो आए हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो प्रोटेस्ट के आड़ में कई लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, वो उनसे सबसे ज़्यादा है। अब उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों मैं इस बात को पुख्ता तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि 2500 लोग ऐसे दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जो जंतर मंतर पर देखे गए। फेस रिकग्निशन व्हीकल के थ्रू उनका फेस रिकग्नाइज किया गया, उनका डाटा इकट्ठा किया गया और वो तब पता चला कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है, छात्र ही नहीं है, युवाओं के नाम पर वो लोग भी शामिल हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अब क्या देखना होगा कि जिस तरीके से मांग की गई थी, जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनसे सारे केसेस वापस लिए हैं, क्या उन लोगों पर भी जो केसेस लगे जिनको आइडेंटिफाई पुलिस ने किया है। आज भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजवीर ने जी, सरकार के लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि ये पूरा एहतजाज चलता है और जहां एक तरफ बात करने की कोशिश भी नहीं होती है, लेकिन 20 तारीख के बाद जिस तरह के हालात बदले और लगातार चारों तरफ से सरकार की मुखालिफत होने लगी, उसके बाद बातचीत का सिलसिला अपनाया जाता और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आता है। शबनम, एक चीज हमको समझनी होगी कि जब लोकतांत्रिक तरीके में हर किसी को संविधान ने ये राइट दिया है कि वो अपनी बात को बखूबी आज़ादी के साथ रख सके। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि यही सरकार जिसमें कहा जाता था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होंगे, ये पहला इस्तीफा है, ये हिस्ट्री है इस 12 साल की सरकार में कि पहला इस्तीफा दबाव में आकर दिया गया। यानी कितने बड़े बड़े केसेस हो गए, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ। विपक्ष ने लगातार हरा गया। सड़क से लेके संसद तक जिस तरीके से वहाँ जो है हंगामा देखने को मिला, उस हंगामे की बनिस्बत यानी सड़क पर जनजी ने मोर्चा संभाला और संसद के अंदर विपक्ष ने मोर्चा संभाला, यानी ये कॉम्बिनेशन जो बनाया गया, सरकार पर उसका दबाव हुआ। क्योंकि जब से संसद शुरू हुई है 20 तारीख से, उस तारीख से अब तक संसद पूरी तरीके से नहीं चल पाई। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 39 सेकंड के अंदर राज्यसभा एडजर्न कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर है। आप ये समझिए कि आप लोकसभा हो या राज्यसभा, उसको चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यानी सांसद आते हैं, उनका टाइम लगता है, उनका खर्चा होता है। वो करोड़ों रुपए किसके हैं आखिर? वो करोड़ों रुपए आम जनता के टैक्स से दिए हुए पैसे हैं जो संसद में खर्च होते हैं। तो सरकार पे एक ये भी दबाव है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़, सरकार इस चीज़ को भी पॉजिटिवली अपने लिए ले सकती है। सरकार की खासियत ये कि उसके खिलाफ जितना भी आप निगेटिव बोलेंगे, वो अपने आप को उसी चीज़ को उतना ही पॉजिटिवली अपने लिए सामने प्रेजेंट करती है। ये अब आने वाले दिनों में, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है 2027 के पहले महीने में ही है, नवंबर से उसकी तैयारी शुरू हो जाएंगी। सरकार कहीं ना कहीं इसका भी फायदा उठाएगी कि देखिए, हम जनजी की बात हमने मानी, हमको कमियां नजर आई, हमने अपने मंत्री का इस्तीफा लिया।
ये भी कहा जा रहा था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस्तीफा दिया गया और पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर ठीक है, आपके पास आएंगे सैयद मुबशीर। जैनसी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। साथ ही साथ हम इन्हें ये देना चाहते हैं कि आज भी तो इतने आए हैं, आगे और भी आएंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी। इस देश में राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको केजी से पीजी तक जब तक समान सरकारी शिक्षा नहीं मिलती, साथ साथ परीक्षा से लेकर शिक्षा का जो व्यापक निजीकरण है वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो अभी प्रधान ने आज ना दोबारा से नई शुरुआत हुई है एक एजुकेशन के नए सिस्टम की, जिसमें अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है। अभी अब हमें बहुत जाना है। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। आज जब ऐसे ही दोबारा होता रहेगा ना, बच्चे फिर आएंगे और फिर जीतेंगे। गवर्नमेंट कितना भी जोर लगा ले, सबसे बड़ी पावर होती है यूथ पावर, और हर बार हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे यूथ पावर सबसे बड़ी है इस देश में, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची यूथ पावर हो। इसे बार हम भी जीते, हर बार हम जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो झंझे को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट अभी यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। सिर्फ इस्तीफे के बाद ये प्रोटेस्ट नहीं ख़त्म होने वाला है, आगे बहुत कुछ चेंजेस वो चाहते हैं देश में। बात उन्होंने करप्शन की भी की है कि अभी करप्शन के खिलाफ भी वो लोग आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने बोला कि ये यूथ पावर है और यूथ पावर अब रुकेगा नहीं। जिस तरह से आपने इस प्रोटेस्ट में भी देखा कि यूथ पावर सच में नहीं रुका। 36 दिन के बाद जिस चीज़ की वो मांग कर रहे थे वो उनकी पूरी हो गई है, और अब इस मांग के बाद उन्होंने कहा है कि ये प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रुकेगा, अभी बहुत चीज़ें चेंज करनी है उनको। तो बिल्कुल, और ये एक इनकलाब है और लोग जो जेंजी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो इसे बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वो इससे भी मुतमईन नहीं होते हैं। लगातार उनका कहना है कि अभी शुरुआत हुई है और अभी पूरा इनकलाब लाना बाकी है। मुबशीर हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबशीर, जो एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया गया सीजीआई के जरिए, कॉकरोचेस, और वो कॉकरोचेस ने बता दिया कि उनकी क्या अहमियत है इस देश के अंदर, उनकी ताकत क्या है, और ये एक शब्द कैसे इस जन सैलाब में बदल गया इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। लेकिन हाँ, सरकार को एडमिट करना पड़ा कि हम युवाओं के फ्यूचर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अब इसी तरह के स्टेटमेंट तमाम अपोजिशन पार्टीज के भी आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं कुछ पोस्टर्स देख रहा था जंतर मंतर पर, जहां पर एक मीम थे, क्योंकि मीम इतने ज़्यादा हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या क्रिएटिविटी इन जेंजीज ने दिखाई है। बहुत ऐसे मीम्स थे जो बहुत ज़्यादा वल्गर भी थे, बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द थे जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत मीम्स ऐसे भी थे जिस तरीके से एक मीम ये बना हुआ था, पोस्टर पे लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई के कान पकड़ के बोला कि जब कॉकरोच के बारे में इतना बड़ा बयान देने की ज़रूरत क्या थी, देख अब भुगत क्या हो रहा है देश में, पूरे देश में कॉकरोच फैल गए। तो इस तरीके के पोस्टर्स भी देखने को मिले। लेकिन मैं आपको सबसे अहम चीज़ बता दूं कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हर बार किसी भी आंदोलन को आप लेके देखिए, उसका एक सूत्रधार जरूर कोई ना कोई बनता है। शायद वो सूत्रधार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने ना कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल किया होता, ना कॉकरोच जनता पार्टी बनती, ना कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर आती, ना कॉकरोच जनता पार्टी 36 दिन तक आंदोलन करती, ना धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, ये अपने आप में पहली बार है पूरी दुनिया के इतिहास में कि इस तरह की कोई पार्टी बनी और इस पार्टी ने कहीं ना कहीं सरकार को झुकाया। सरकार ये को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभिजीत दीपके बार-बार इस बात को कहते हुए नजर आए हैं। ये जीत सिर्फ अभिजीत दीपके की नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट्स की जीत है। वो उसका क्रेडिट लेने से भी इनकार कर रहे हैं। सैयद मुबशीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि आप तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, जहां पर इस प्रोटेस्ट को लेकर लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है।